Greetings of the day, dear students. Today in this video we are going to discuss the important questions for class BA third semester English minor. The name of the course is English Prose and Poetry 2. इसमें दो कोर्सेज पैरेलल रन कर रहे हैं फॉर द सेम क्लास BA इंग्लिश सेमेस्टर 3. एक वन एक्ट प्ले है और दूसरा इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री 2 है. वन एक्ट प्ले वाले कोर्स का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री 2. जो बुक है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, मेरी ही लिखी हुई है. इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको बताने से पहले आई एम टेलिंग यू कि इसमें 4 यूनिट्स हैं और सिलेबस का यूनिट भी डला हुआ है. और जो पोएम्स हैं सारी, वो भी कुछ पोएम्स आपको चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे ऑन इज ब्लाइंडनेस भी है और एक दो पोएम और भी हैं. यू कैन चेक ऑन माई यूट्यूब चैनल. नाउ लेट अस कम टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम दोनों डिस्कस करेंगे, शॉर्ट एज वेल एज द एसे टाइप क्वेश्चंस. और वीडियो के एंड में मैं आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी बताऊंगी किस तरह का पेपर आएगा. और इसमें एक मैंने वीडियो डाला हुआ है अटेम्प्टिंग द इंग्लिश एग्ज़ाम इन द राइट वे, तो वो भी आप ज़रूर देखना. उसमें आपको पेपर के बारे में पता लगेगा कि हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, लॉन्ग कितने बड़े होने चाहिए, तो आपको हर एग्जामिनेशन टिप मिल जाएगा वहाँ से. Now let us come to unit wise important questions. First, let us take up the prose part, unit 1. Speeches at the World's Parliament of Religions written by Swami Vivekanand. इसमें जो short question important है, what was the main purpose of Swami Vivekananda's speech? जो welcome speech थी, इसका main purpose क्या था? दूसरा, how did Vivekananda address the audience in his opening remarks? What legacy did Vivekananda hope to achieve through his speech? What does Swami Vivekananda hope for the future of religious interactions? These are the short questions. Now the long questions. Significance of Swami Vivekananda's speech at the World's Parliament of Religions. और दूसरा इसका जो central theme या motive है, present in all the important speeches of Swami Vivekananda's एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन. ये जो इनका मोटिव है, थीम है या सिग्निफिकेंस है, तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक इसमें क्वेश्चन और भी है, व्हाट लास्टिंग इम्पैक्ट डिड स्वामी विवेकानंदा स्पीचेस हैव ऑन इंटरफेथ डायलॉग एंड द परसेप्शन ऑफ हिंदुइज्म इन द वेस्ट. यही थे इसमें इंपॉर्टेंट. नाउ फ्रॉम चैप्टर 2, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन बाय जे कृष्णमूर्ति. सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. In what ways does contemporary education fail to support our broader understanding of life? What does the author believe is the purpose of education and why is it important? How are fear and intelligence connected? What is the author questioning about education in this essay? Now the long questions. How does J. Krishnamurti define the true purpose of education? And how does Krishnamurti envision the future of education? दो ही हैं इसमें, दोनों लगभग सेम ही रहेंगे. नाउ फ्रॉम चैप्टर 3. चैप्टर 3 इज द गोल्ड फ्रेम. सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द गोल्ड फ्रेम? नेक्स्ट, हाउ डिड दत्ता अटेम्प्ट टू फिक्स द डैमेज कॉज टू द फोटोग्राफ? What made the customer feel indignant? And what actions did Datta take with the unclaimed photographs? Now the long question answers. What unfortunate event, disaster occurred to the photograph and how did Datta react to it? ये short में भी आ सकता है. Examine how R.K. Lakshman's portrayal of Datta in the gold frame highlights the moral dilemmas of ordinary people. इसको हम character sketch of Datta भी डाल सकते हैं, दोनों ही आंसर सेम रहेंगे. And the last one, the use of humor and satire in this text, the gold frame. Now the next chapter, how I became a public speaker. Short question answers. What motivated G.B. Shaw to become a public speaker? How did Shaw prepare for his speaking engagements? What recommendations does Shaw provide regarding elocution training? What do you think made Shaw's speeches impossible to overlook? Now the long question answers. Discuss the initial challenges G.B. Shaw faced in becoming a public speaker.
या इसमें सेम रहेगा आंसर, एग्जामिन द प्रोग्रेशन ऑफ शॉज जर्नी एज अ पब्लिक स्पीकर, दोनों का आंसर सेम है. नाउ द पोइट्री सेक्शन, यूनिट 2. फर्स्ट पोएम, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डज द टाइटल द वर्ल्ड इज टू मच विद अस सिग्निफाई? What is the significance of the phrase sordid boon? What does the poet imply by saying the world is too much with us? What are we out of tune with? What does the poet glimpse and how does it influence him? Now the long question answers. Long question answers सभी पोएम्स के लिए थीम का बहुत इंपॉर्टेंट है. हर पोएम की थीम आप करके जाएंगे. इस पोएम का भी थीम ऑफ मटीरियलिज्म या थीम जो मॉडर्न वर्ल्ड का है वो आ सकता है, नेचर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो ऑल द आंसर्स आर नियरली द सेम. तो थीम का क्वेश्चन आप ज़रूर करेंगे. नाउ फ्रॉम द सेकेंड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट? What do you think the poet intends by phrase mild yoke? What is the poet's main grievance with God? Now the long questions, again the theme of this poem, and एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीकर्स इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन दिस पोएम. इसमें थीम और ये सेम रहेगा आंसर दोनों का, तो एक ही आप तैयार करेंगे तो दोनों में काम चल जाएगा. नेक्स्ट, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. Why does the narrator stop by the woods? Why does the horse give his harness bells a shake? What do the woods symbolize in the poem? ये important है. और अगला भी बहुत important है. What do the promises refer to in the poem? What is the significance of the repeated line and miles to go before I sleep? Now the long question answers. Theme again very very important. सिग्निफिकेंस ऑफ हॉर्स भी आप कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम भी कर सकते हैं थोड़ा सा. थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें. नाउ फ्रॉम द लास्ट पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड, शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट. हाउ डज पोप डिस्क्राइब द आइडियल लाइफ इन द पोएम? व्हाट डज द पोइट विश फॉर रिगार्डिंग हिज डेथ? व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड? लॉन्ग क्वेश्चंस, अगैन द थीम ऑफ सिंप्लिसिटी. उसके बाद आपका ग्रामर पोर्शन आ जाता है, यूनिट 3. यूनिट 3 में 3 टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस और नरेशन. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आएंगे. बुक के एंड में, आपके चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, तो आप उन एक्सरसाइजेज को करके जाएंगे और उसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स ब्रैकेट में लिखे होंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिलअप करना है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिलअप्स आएंगे. नेक्स्ट आपका है वॉइस और नरेशन, इसमें कन्वर्जन्स आएंगी दोनों में. तो आप ये कन्वर्जन आएगा एक्टिव टू पैसिव और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. इसमें रूल्स हैं, वो आपके बुक में बहुत अच्छे से दे रखे हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा. नाउ फ्रॉम द लास्ट यूनिट, यूनिट 4. यूनिट 4 में आपके लेटर राइटिंग है जो मेन फोकस है. और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, जो मुझे लग रहा है आपका एक ऑफिशियल लेटर राइटिंग 100% आएगा. ऑफिशियल किस तरह का आएगा? लेटर आपने किसी कमिश्नर को लिखना है, जॉब एप्लीकेशन का लेटर है, कोई कंप्लेंट है, एसडीओ को लिखना है, हेल्थ मिनिस्टर को लिखना है, कोई भी लेटर ऑफिशियल 100% आएगा. उसके बाद आपका आ सकता है इसमें ईमेल राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट है. और इसमें डेफिनेशन आ सकती हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन में, शॉर्ट में, डेफिनेशन ऑफ इंक्वायरीज और व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल एटिकेट्स. ईमेल एटिकेट्स का क्वेश्चन भी आ सकता है. और एक छोटा सा आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल अपील्स या व्हाट आर पैम्फलेट्स. तो ये आप कर जाइएगा. और इसमें लेटर राइटिंग में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ऑफिशियल लेटर राइटिंग में, और ईमेल पे भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. तो ये सारा आप अच्छे से कर लीजिएगा. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्कीम, द पेपर पैटर्न. देयर विल बी 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, द स्टूडेंट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच यूनिट. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, और आपको 6 में से 4 करने होंगे. हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, 3 क्वेश्चंस आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे. कहाँ से आएंगे? यूनिट 1 से, यूनिट 2 से और यूनिट 4 से. यूनिट 1 जो मैंने आपको बताया प्रोज क्वेश्चंस थे,
यूनिट 2 पोइट्री वाली यूनिट, और यूनिट 4 है आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में जो लॉन्ग क्वेश्चंस है मैंने पहले ही बता दिया आपको लॉन्ग। फर्स्ट आपको करना है जो ऑफिशियल लेटर है वो आ सकता है, ईमेल राइटिंग आ सकता है, और तीसरा ईमेल एटिकेट्स के पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है लॉन्ग। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका डू एज डायरेक्टेड काइंड्स आएगा यूनिट 3 में से, जो हमने डिस्कस किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस और नरेशन। फिलअप्स भी आएंगे, कन्वर्जन्स क्वेश्चन भी आएंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पेपर पैटर्न। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज, योर डाउट्स. All the best for your exams. Thank you and have a nice day.